Okay. Most of the room. How many of us? I mean, it's a wrong question to ask in this room. How many of us hate hotel management? Be frank. Yeah. It's fine. I understand some because it is not a cup of tea for everybody, and the more you go into it, some of you are amazed. यार इसको भी इसे पसंद नहीं है. So it's good that you got to know what you want to do, what you don't want to do after these 3 years, and it's fine. Nothing is wrong or right over here. When I was at your stage, I already had a hotel business, so it was just meant for me to be into that business. That's why I didn't take part in any group discussions, nothing at all. So now, what I wanted to tell you for this particular hour or two can be a defining moment for you if you let it be. आई नो लॉट ऑफ यू हैव गॉट योर जॉब्स. किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी को यूएस जाना है, किसी को पीडी करना है, किसी को इधर जॉब करना है, दोस्त का वगैरह वगैरह. फाइन, बट प्लीज कीप एन ओपन माइंड फॉर दिस 1-2 hours. Don't worry about jotting down all the things which I'm going to write. I'm going to send the presentation to sir. He's going to share it with you guys. Just write down the thoughts which come in your mind. Whatever revolutionary thoughts which come in your mind, वो लिख लेना. बाकी don't go just writing down कि मैं क्या दे रहा वगैरह. I'm going to share all the slides with sir. Be very, very free. I am going to today discuss a most important element in your lives, which is not related to earlier 1 or 2 years. It is related to 15, 20, 30 years after your current situation. Yeah? So अभी आप जॉब करोगे, आप 5 स्टार में जॉब करोगे, कोई क्रूज पे जाने वाला. हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू गो टू क्रूज? 2-3 लोग, 3-4-5. मोस्टली फूड सर्विस, राइट? बटलर. Yeah, I know. A lot of money in that. So, this is set now. You guys are going to do contracts after contracts. All the people who are going to work. 5-10 साल दबा के पैसा छापने वाले हो. The first thing which you are going to do is you are going to cover whatever your money you have spent in the hotel management. How much you have spent now? 6 lakhs. Yes. आंकड़ा एकदम मुंह पे. Which is good. पहला 6 लाख वसूल करना है अपने को. Right? 6 लाख वसूल हो जाएगा 1-2-3 साल में, hopefully. जितना जल्दी होएगा उतना अच्छा है. उसके बाद और एक 10-15 लाख रुपए जमा हो जाएगा आपके अकाउंट. 10-15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए. एंड दिस गोज अलॉन्ग विथ यूर हैविंग फन. भी मजा आ रहा है, यूर गोइंग ऑन वेकेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. आई एम नॉट वो उतना तक तो सब लोग पहुंच जाएंगे. 25-30-50 लाख 1 करोड़ रुपए तक आप जमा हो जाएंगे. उसके बाद क्या होता है, उसके लिए मैं आप यहाँ पे आया हूँ. आई हैव कम हियर आफ्टर यू हैव 50 और a crore rupees in your account, or maybe 50 lakh rupees to start with, savings में, gold में, falana dingna, whatever. That is where I have come in picture, because that is the time when boredom will start hitting you. I am working with high ticket restaurant owners, and a lot of people come to me to start their restaurants. You know what kind of people are they? Engineers, doctors, lawyers, professors. They have a lot of money, but they are bored. They have nothing to do. पक गए वो लोग वही रोज रोज का करके. अभी आपका द पीपल गोइंग ऑन अ शिप, बैक टू बैक यू आर गोइंग टू गो ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स. 6 महीना 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? हाँ, 9 months का कॉन्ट्रैक्ट होता है. 1, 2, 3, 4, 10 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. आपका पैसा जमा, फ्लैट ले लोगे, जो भी डेट है ये कर दोगे. सो द पॉइंट हियर व्हेन सर कॉल्ड मी एंड व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि what is that particular thing which you have to think about, which will become your purpose in life. And money is not purpose in life. Please let me tell you, 22 years back I've got as much money as possible, car, गाड़ी, घोड़ा, भगड़ा, कुछ नहीं. But still I'm doing this. I'm helping people because I believe that this is my purpose. So आपको आपका purpose के ऊपर focus करना बहुत ज़रूरी है. So I want you to write down, just if you have pen and paper, draw a single line from middle and आड़ा लाइन 4 पार्ट में डिवाइड कर दो वो पूरे इसको, राइट? 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. एंड हर एक पार्ट में लिखना हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड चैरिटी. We will take 5 minutes to do this exercise. After that, it's all health, wealth, relationship and charity. एक एक क्वाड्रेंट में एक एक लिख देना. Now, a simple question
Aisha, I'm going to tell you, and you have to just focus, close your eyes, and imagine your life 30 years from now. 30 years. How you want your life to be. It can be as crazy as it is. You might want to stay besides Mukesh Ambani's Antilia. Nothing is right or wrong here. And how much money you have, what will be your health, you have to write this down now. What will be your weight, how do you want your life to be 30 years from now. What is your age now, by the way, average age कितना है? 21, okay. तो 51 तक हो जाएगा, right? 51 तक आपको क्या क्या करना है? I know this sounds very funny, lot of people might not want to do it, but this is the activity which is going to define your lives. 30 साल के बाद आप कैसे क्या होगे वो अभी आप अगर लिखोगे तो you will reach that point. There was a study in Harvard where they studied 2 particular classrooms in which one classroom was made to do this activity, and it was proven that after 30 years the people who wrote this down actually became successful by realizing those goals. So please write down, and you don't have to share it, it's your personal thing. पैसा कितना आपके पास चाहिए, whatever it is, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ whatever. आपका हेल्थ कैसा होगा, relationships, you want to get married, non-married, and charity. By the way, charity, why I'm trying to write that, once you get a lot of money, slowly you start giving. Like now how I've come. I charge lakhs of rupees to sit with restaurant owners. But I've come here because I want to give back to the, वो stage पे आप जब भी पहुंचोगे ना, you start giving back to the society. And the more you give, the more you get. Right? So write this down, do this activity, and keep this paper with you for 30 years. It is going to realize, if you're doing this seriously, it is going to get realized because your pen and your paper is going to make you millions. I know this is little detour from our opening your restaurant thing, but make sure that you have that. Okay, you can do that later. So let's start with the presentation. How to start or scale your restaurant. People who want to work, eventually 5 साल 10 साल के बाद में आपको ये रेस्टोरेंट खोलने की शायद इच्छा होगी. I think you guys have had your party, क्या बोलते हैं उसको, फेयरवेल पार्टी हुआ क्या? क्यों, होने वाला है कि नहीं होने वाला? कभी लास्ट 2 दिन पहले 10. Okay, cool. Enjoy the party. This is going to be the best party ever. Why? But you guys can have a party, ना? हाँ, but official मतलब कॉलेज की तरफ से नहीं है. Oh, enjoy the unofficial party then. Okay. Simple 3 things: why, what, and how. The first thing which I covered to you is why. Whatever you are going to write down in those things 30 years में, if there is no owned restaurant in those particular things, don't go to open a restaurant. अगर आपको 30 साल के बाद आपके पूरे डे में 30 years, the goals which you are writing is going to be a whole day. मैं सुबह उठूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मेरी वाइफ को उठाऊंगा, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ूंगा, फिर मैं आई नो इट साउंड्स फनी बट फिर मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा या जॉब पे जाऊंगा. ये क्या आपके वो 30 years के इसमें आता है? उसमें अगर रेस्टोरेंट नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू ओन अ रेस्टोरेंट 30 years नाउ, डोंट ओपन इट नाउ. सिंपल, राइट? सो व्हाई. सेकेंड इज व्हाट. वंस यू हैव डिसाइडेड व्हाई कि बाबा आपको रेस्टोरेंट ही खोलना है, नॉट टू प्रूव टू एनीबडी, मेरे पिताजी को प्रूव करने के लिए, माँ को प्रूव करने के लिए, दोस्त को प्रूव करने के लिए, आई वांट टू क्रिएट अ ब्रांड फॉर माई सेल्फ, आई वांट टू सेल इट एंड आई वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. इफ दैट इज द गोल, then go and open a restaurant, because opening a restaurant and running a restaurant is not everybody's cup of tea. I'll seriously, it's very lucrative and very tempting. You know, ऐसा गुलाब जामुन खाने जैसा फील आता है, रेस्टोरेंट खोलेंगे यार, मस्त ओपन करेंगे, धड़ाधड़ पैसा ही पैसा होगा. That is not the case at all. Yeah. So who, what and how. Ask yourself why we did this, why do you want to do it, and I am going to show you the difference between opening a restaurant and working for somebody else. क्या होता है? There is nothing right or wrong. जिसको जॉब करना है जॉब करे, जिसको होटल खोलना है होटल खोले. लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये 30 साल के बाद आपको पता चले, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं. राइट? इमेजिन आइडियल लाइफ, वी डिड दिस. हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप चैरिटी हो गया.
डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय. एंटरप्रेन्योर मतलब रेस्टोरेंट ओनर, एम्प्लॉय मतलब वो पर्सन हु इज गोइंग टू वर्क फॉर समबडी एल्स. बाय द वे, इफ समबडी इज फीलिंग दैट मेरे पास पैसा नहीं है बोल के मैं रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, इट इज जस्ट अ मेंटल ब्लॉक. मनी इज अवेलेबल इन द मार्केट एम्पल. इनफैक्ट नाउअडेज तो पीएम का योजना वगैरह चालू हो गया, आपको 10-20-30 लाख रुपए तो कोलैटरल फ्री 1 करोड़ रुपए तक मिल रहा है. एंटरप्रेन्योर जब भी रेस्टोरेंट चालू करता है, इनिशियली, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, उसकी जिंदगी झंड है. 3 साल 4 साल भूल जाओ उसका, आप दिखने वाले भी नहीं हो फ्रेंड्स को. इनिशियली फाइनेंशियली क्रेजी लाइफ, इनसिक्योर्ड लाइफ. एम्प्लॉय फाइनेंशियली सिक्योर्ड, 1 तारीख को या वट एवर द डेट इज फॉर द पगार, आपका टंग करके आपका मैसेज आएगा, 30,000 आ गया, 40,000 आ गया, खुश. अभी वो उड़ाने के पीछे लगने का. टू मच हार्डवर्क, 0 to 3 years रेस्टोरेंट के लिए. टू मच मतलब इट्स लाइक आप भूल जाओगे कि आप घर में कोई है. रात को मम्मी रात को सो जाएगी, तब तक मम्मी सोई रहेगी. दूसरे दिन सुबह आप उठोगे, तब तक मम्मी भी सोई रहेगी. कोई मिलने वाला ही नहीं आपको. प्रिडिक्टेबल जॉब, ये काम करो, F&B आपका ये शेप वेप जो भी है. एंटरप्रेन्योर, 0 सोशल लाइफ, किसी का शादी में जाने नहीं मिलेगा. यू माइट थिंक कि ये इतना नेगेटिव क्यों बात कर रहा है बंदा, बट ये फैक्ट है. बट ये जो एंटरप्रेन्योर का लाइफ है ना, ये इनिशियल 5 साल का पेन है. यू नो, जो एंटरप्रेन्योर इज लाइक यू आर पुटिंग अ सीड इन द ग्राउंड. जब भी अपन सीड ग्राउंड में डालते हैं ना, उसको ऊपर आने को कम से कम 2 महीना लगता है. बट झाड़ जब भी ऊपर आता है ना, उसके बाद उसको बढ़ने के लिए फटाफट टाइम नहीं लगता. या सो यू आर एक्चुअली पुटिंग अ सीड इन द ग्राउंड. हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ओपन रेस्टोरेंट्स बाय द वे? 1 2 3 4 5 6. ओके, गुड फॉर यू. 0 सोशल लाइफ, बैलेंस 9 to 10 आवर्स जॉब. 8 मतलब ये जो एम्प्लॉय है उससे ज्यादा करेगा तो ओवर टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं है. ओवर टाइम मिलेगा, टिप्स मिलेगा, जो भी है. स्लोली दिस गाय और गर्ल, whoever is going to open a restaurant, is creating a brand. This is very, very powerful. This brand is going to make him crores of rupees, slowly and steadily. Whether she or he knows it or not, but she, when he opens a restaurant at a particular place, and that restaurant starts running for 2 years, 3 years, 4 years, वो जो रेस्टोरेंट का नाम है ना, वो आजू बाजू वाले लोगों को मालूम पड़ना चालू हो जाता है, एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ ब्रांड. नाउ हाउ टू लेवरेज दैट ब्रांड is a different story, but he or she starts creating a brand. इधर एम्प्लॉय का कुछ ब्रांड वैंड का कुछ लेना देना नहीं. आपका जॉब में आपको सैलरी ज्यादा नहीं मिला, कोई प्रमोशन नहीं दे रहा है, यू विल स्विच टू अ डिफरेंट कंपनी, बट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर समबडी एल्स. देयर इज नो ओनरशिप, नथिंग. लॉकर भी खाली करके सब सामान लेके जाना पड़ेगा, लॉकर भी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जाने का. व्हाट ही इज डूइंग एंटरप्रेन्योर, ये मैं 4-5 साल के बाद की बात कर रहा हूं. वंस योर रेस्टोरेंट इज प्रॉफिट, आइडियली अ रेस्टोरेंट स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट विद इन 6 to 8 months. 6 महीना तो भूल जाओ, प्रॉफिट नहीं होएगा. 6-8 महीना 10 महीना में स्लोली प्रॉफिट होना चालू होता है. ही स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉफिट मशीन. इधर से वो राहुल गांधी का डायलॉग है ना, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकालो, वैसा है. इधर से रॉ मटेरियल डालो, उधर से कैश निकालो. आलू डालो, आटा डालो, जो इंग्रेडिएंट्स डालो, इधर से कैश निकालो. इट बिकम्स अ प्रिडिक्टेबल money making machine, which is very, very, very powerful, which cannot happen with an employee, unfortunately. Income is capped. आप कितना कमाओ? अभी आजकल क्या पैकेज चल रहा है शिप पे? 8 लाख, 10 लाख, 10. नाउ यूर 22 years of age. कितने जो शिप पे जा रहे हैं 22 है. 52 years के एज में जो बंदा काम कर रहा है, उसका कितना पैकेज रहेगा? 15, 18, 20. One restaurant makes around 2 lakh rupees on an average profit. Imagine if this person, 2 lakh profit मतलब 24 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया साल का. Imagine this person opens 4 shops. It is possible here. It is not possible there. You cannot work for, because you are exchanging your time with money, right? Exchanging time with money. He can sell, he can create multiple outlets, 7-8 outlet, and he can sell to a VC fund. 50 करोड़. आइडियली 1:5, 1:10 सेल का रेशियो रहता है. 10 करोड़ का सेल करो साल का, लेट से 4-5 आउटलेट आपने खोला, 10 आउटलेट खोला. कंपनी को बोलो भाई मेरा 10 करोड़ का ऑफिशियल सेल है, मेरे को मेरा ब्रांड बेचना है. कंपनी को 1:5, मेरे को 1:10 चाहिए. नहीं 1:5 देता हूँ. 1:7, 70 करोड़ लो, भूल जाओ. 70 करोड़ लो, गोवा में चिल करो.
नॉट पॉसिबल हियर. अच्छा, गोवा में मत चिल करो, 2-3 साल नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट साइन करके लेते, 70 करोड़ मिलने का, 3 साल मजा करो, वापिस आ जाओ, वापिस वही काम करो, वापिस नया ब्रांड बनाओ. दिस कैन हैपन हियर विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years. Cannot happen here. Depends on promotion or job change. And gets retired, pension. 20 लाख रुपया आप 30 साल कमाओगे, कितना जमा कर पाओगे? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं जमा कर पाओगे. मैं आपको बिग पिक्चर इसके लिए दे रहा हूँ, यू नो. यहाँ पे आप 100 करोड़ कम जमा कर, आपके पूरे, लॉट ऑफ पीपल माइट बी फ्रॉम गुड मनीड फैमिलीज, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आपके जिंदगी में किसी ने 100 करोड़ देखा होगा इधर? So this is possible when you open a restaurant, but you have to bear those birthing pains. 4-5 साल आपको फटे मेहनत. अरे मेहनत तो सब जगह है, शिप पे मेहनत नहीं है क्या? रेस्टोरेंट में मेहनत नहीं है? हाँ, सब जगह. फुकट में कोई पगार देने वाला है आपको? नहीं देने वाला. सो थिंक अबाउट दिस. हाँ, now what? When you decide that you want to open a restaurant, like some of you have decided, and others I would want you to, after you are financially stable or mentally prepared to open a restaurant, the first thing which is going to come in your mind is which type of restaurant. क्या खोलने का? वड़ा पाव का ढाबा, वड़ा पाव का खोलने का, लाउंज बार खोलूं, 5 स्टार का ये खोलूं, क्या खोलूं? What will be your budget? What is your location? What is the rent? What is the monthly salary? And what is the approximate sale? So from today onwards, one simple exercise which you can do, weekly एक बार तो अपन कैफे वैफे में जाते होंगे ना, 1-2 बार. अपन जाके क्या करते हैं कैफे में, रेस्टोरेंट में? हाँ, वाह, एम्बियंस अच्छा है, लोग दोस्तों के साथ बात करने का, चाय कॉफी पीने का, मेनू का रेट देखने का, व्हाटएवर, अगर किसी में पैसा कम है तो. बट नाउ आई वांट यू टू ट्विस्ट योर बिहेवियर. नाउ यू शुड बी अ स्टूडेंट ऑफ द फूड बिजनेस. whenever you go in a restaurant, and my wife really hates this, I go in a restaurant and I start asking waiter and manager, ये कितना है, स्टाफ कितना है, सैलरी कितना है, भाड़ा कितना है, रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, सेल कितना है. एंड आई टेल यू, एवरीबडी टेल्स एवरीथिंग. उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दे नो, वेटर ऑल्सो नोज कितना दिन का सेल है, क्या है. बट इन ऑर्डर टू ओपन अ रेस्टोरेंट, स्पेशली फॉर पीपल वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, यू शुड बी अ हार्डकोर स्टूडेंट ऑफ द फूड बिजनेस. आपको उसके डायनामिक्स पते होने चाहिए. फ्रॉम टुडे बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द फूड बिजनेस. एक्सपेंस एंड इनकम, आई नो यू गाइज नो दिस, बट स्टिल रेंट कितना है पूछो. सो व्हाट हैपेंस इज यू गेट टू नो अ पर्टिकुलर बिजनेस कि हाउ इज इट वर्किंग, whether it is in a loss, whether it is in profit, सैलरी कितना है, रेंट कितना है. ये सब 3-4 चीजें पता करोगे तो आपको मोर और लेस पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट कर रहा है एक रेस्टोरेंट. सैलरी, रेंट, परचेजेस, मेंटेनेंस. ये मेंटेनेंस मेंटेनेंस तो अपन नहीं पूछ सकते, स्टाफ फूड हो गए, अंदाज मारना पड़ेगा. गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैनेजर बोलता है बाय द वे. डेली परचेजेस, लाइसेंस रिन्यूअल, एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस. इनकम में है ना, सेल. अगर आप वेटर को पूछोगे ना, अरे दिन का कितना सेल है, कोई भी नॉर्मल रेस्टोरेंट वेटर इजीली बोल देगा, सर 50-60 का सेल है, वीकेंड में 70-80 हो जाता है, इंटू 30 हो गया काम. सो बिकम अ हार्डकोर स्टूडेंट इफ यू रियली वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट बाय नोइंग व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ द रेस्टोरेंट. एंड इट डजंट मैटर आप जाके पैसा देने वाले हो, उसको टिप देने वाले हो, ही इज गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू टू स्टडी द गेम. जैसे अपन गाड़ी लेते हैं तो क्या करते हैं, कितने का गाड़ी है, एवरेज कितना देती है, टॉर्क कितना है, फलाना कितना, डिगना. बाइक भी लेंगे तो अपन वही सोचते हैं ना. वैसा अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस का अंदर का सब पता होना चाहिए. बिकॉज आगे जाके जब भी आप रेस्टोरेंट खोलोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट, these are the things which are going to bite your ass. Sorry to use this, but I'm being very frank. These are the things which are going to bite your ass. रेंट, सेल नहीं हुआ, रेंट आपका दिमाग खाते रहेगा. फिर मम्मी पापा, मम्मी एक 5 लाख रुपए डालो, रेस्टोरेंट नहीं चल रहा. ये मम्मी एक बार डालेगी, 2 बार डालेगी, हर बार थोड़ी डालेगी. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशियल. Which qualities you need to succeed in the food business? Now this is something which I have come across after working with hundreds of restaurant owners. The main thing which you want to focus on is your concept. Which type of restaurant you are going to open? What is the location? It has to match. Tell me one thing, a momo counter in front of an old age home, is it going to work? No. It is a restaurant, it is a market, they are customers, but there is no product to restaurant match.
target clientele. If you open a momo or a pizza counter in front of a park or a college or a school, it will work well. Yeah, exactly. So then the pricing is important, relevance is important. Slowly you start creating a brand. First thing which I have put is for 3 to 5 years. Now we did all the hard work initially for all the restaurants. Now I can roam around free. I went to Goa for 10 days. No hotelier can do that. A new hotel owner. I went to, sir called me and I came. Otherwise, I would have stayed for another 3-4 days. That is the liberty which you can get once you open a restaurant. Everything comes into auto mode. Manager ko phone kar, you have Pet Puja now, the app. You get the sale daily, purchases daily thing. क्या गड़बड़ है? शाम को सुबह एक फ़ोन करने का मैनेजर को, कुछ हुआ? नहीं हुआ, सब ओके है. खेल खलास. महीने का 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए अकाउंट में प्रॉफिट. हार्डवर्क, पेशेंस लगता है. 5 साल 10 साल, मतलब ये हलवा नहीं है. पेशेंस लगता है. मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन. आई बॉट माई फर्स्ट कार आफ्टर 7 to 8 years of starting a restaurant because I couldn't afford it because प्रॉफिट नहीं था उतना. सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. You know, when I used to consult for people, I used to set up restaurants all across India. I set up a restaurant for 2 young boys in Chiplun, Ratnagiri. It was a beautiful restaurant in front of a college. बहुत अच्छा चलने लगा. 6 महीने में प्रॉफिट हो गया. And the 2 guys, the owners, went crazy. और पैसा देखेंगे ना वो लोग, they got totally crazy. They bought a Creta after 8 months. iPhone ले लिया, पैसा उड़ा रहे, सैलरी नहीं दे रहे. They started using the money and they went, the restaurant shut off in 2 years. So that could have been prevented if they were little alert with the money. Earning money and saving money are totally 2 different things. So you have to have the financial discipline, the right intention, good quality for the customers, good service. ऐसा नहीं है कि अपने को लूटना है. And marketing and promotions you have to do nowadays. Influencer marketing, blogger marketing and everything. So this is the core. Imagine these 3 are the 3 pillars of a stool on which your restaurant success is depend. Right? You guys are enjoying this? मजा आ रहा है ना? बोर हो रहा है तो बोल देना. Where are you now? Whoever is going to start a restaurant, whoever is not going to start a restaurant, आगे जाके जिसको चालू करना है, if you are frustrated and excited to learn but are not ready, I would suggest you to start studying and planning. Planning करना चालू करो. Imaginary restaurants बनाना चालू करो. Now you raised your hand when you want to start a restaurant. What is your budget approximate? Just give me a ballpark figure. 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना है? 20 lakhs. So इमेजिन करो कि आपके पास 20 लाख है और आपको जो एरिया में चालू करना है वो एरिया में एक पर्टिकुलर लोकेशन में, मैं ये लोकेशन में चालू करूँगी, उसका भाड़ा कितना रहेगा, कितना मैं कैपेक्स डाल सकती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल सकती हूँ, कितने लोग रख सकती हूँ, स्टाफ, सेल कितना होगा, कहाँ से होगा सेल, मैं हर महीना भाड़ा कैसे निकालूंगी. हाँ, 20 lakhs में ऑफकोर्स आपके पास 20 लाख ही है ना. 20 लाख में आपने वर्किंग कैपिटल कितना रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, फॉर इमीडिएट नगेट्स फॉर पीपल वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट, आप भाड़ा कितना साल का, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का करोगे, एग्रीमेंट? 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना. 1 साल में तो आपका रेस्टोरेंट प्रॉफिट करने लगेगा. अगर आपने 2 साल का किया है, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Minimum 5 to 10 years. McDonald's does a minimum of 15 years contract. The reason is, after doing a lot of मेहनत for 1 year, your restaurant starts making profit. और रेस्टोरेंट प्रॉफिट आने के बाद 2nd ईयर में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा. तो प्लस में कौन आया? लैंडलॉर्ड नचाएगा फिर आपको. आपका भाड़ा 35,000 है, अभी मेरे को 70,000 दे दो. आप क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा. तो 5 से 10 साल का ऐसा लैंडलॉर्ड ढूंढो जिसको 5 से 10 साल के लिए देना है. एंड देयर आर मेनी पीपल. मैकडोनल्ड्स डज फॉर 15 years मिनिमम. वो तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके एग्रीमेंट करता है ताकि जो बंदा हिले नहीं. एंड इफ यू वांट टू लीव, पुट दिस थिंग, व्हाट यू कॉल, हैवी पेनल्टी टू लीव इट. तो सामने वाले को बोलना कि भाई मेरे को इतना पैसा दे तो ही मैं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी. ओके, सो anyways, coming back to this, if you are here, अगर आप कंफ्यूज्ड हो
So study and plan. If you are ready to open a restaurant but don't know how to start executing step by step. Third is आपने ऑलरेडी ओपन किया है, विच डजंट अप्लाई फॉर यू गाइस. ये दो तो आपको अप्लाई नहीं करता बिकॉज यू हैव नॉट स्टार्टेड रेस्टोरेंट. बट इफ यू हैव ओपनड अ रेस्टोरेंट, स्टार्ट लुकिंग एट ऑपरेशंस एंड बिल्डिंग सिस्टम्स, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड फाइनली व्हेन इट इज ऑलरेडी सेटल्ड, just focus on expansion. This is not for you guys. A 30,000 feet view of this business. Now, these are the different types of restaurants, and I don't have a pointer here. अरे इसमें pointer है क्या दोस्त? Oops है हाँ. I know yes, drawing थोड़ा सा भद्दा है, but this is a triangle. On the bottom are all these smaller types of restaurants, QSRs, food trucks, small outlets. On top of that are these veg UDP restaurants, single cuisine restaurants, moderately priced outlets. Middle में है cloud kitchen and home delivery model. या इसको cloud kitchen खोलना है good. Cloud kitchen and home delivery models. I believe that cloud kitchen and home delivery models is to the restaurant business what Ola and Uber is to the taxi business. Won't you agree? It is a what do you call that? It's a breakthrough. कैफेज, फास्ट फूड आउटलेट्स, कॉफी शॉप्स, फिर ये जरा हाई रेंज वाले रेस्टोरेंट जाते हैं, कैजुअल फाइन डाइन, वेज नॉन वेज बार रेस्टोरेंट्स, फिर ये टोटली हाई, मतलब यू नो प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, हाई एंड रेस्टोरेंट्स. नाउ दिस इज द मार्केट डिस्टरप्टर. When you go from bottom to top ना, your risk factor starts increasing because you are putting more money in an outlet. ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, इसको डालने को आपको कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए लगने वाले. ये जो रेस्टोरेंट है, इसको डालने को आपको 10-20 लाख रुपए में हो जाएगा. Yeah, longevity of business on the bottom side is more and on the top side is less. मतलब ये वाला जो बिजनेस है, ये 5 से 10 साल 15 साल भी आप चला लो, 20 साल चला लो, nothing happens. ये वाला हाई एंड रेस्टोरेंट में है ना, when people have more money they get bored very easily. That's why you have to keep on renovating every 3-4 years. 2-3 साल में उसमें पैसा डालना, पैसा निकलता है बट पैसा डालते रहना पड़ता है. राइट, एंड दीज आर रैपिडली स्केलेबल. नीचे वाले आप 1 का 2, 2 का 5, 5 का 10 कर सकते हो. एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर को उठा लो, उनके नीचे टीम डाल दो, सेम सिस्टम्स रेप्लिकेट करो, आपके आउटलेट फटाफट बनते गए. ये वाले जो है ये ज्यादा रेप्लिकेट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ बजट एंड बिकॉज अ पर्सन, अ मनीड पर्सन हु हैज गॉन टू वन रेस्टोरेंट इन अ पर्टिकुलर सिटी, do you think he's going to go to the same outlet in the other city? He's not. Oh, अरे वापस ये तो एक्सपीरियंस लिया, अभी वापस क्या लूं, राइट? सो दिस इज हाईली, दिस हैज गॉट गुड मनी बट यू हैव टू पुट इन मोर मनी एंड इट इज लिटिल रिस्की, लेस स्केलेबल. दिस इज हाईली स्केलेबल. बॉटम में यू हैव हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स, बहुत दबा के पब्लिक आता है. नीचे ऊपर आपको लेस नंबर ऑफ पीपल बट हाई प्रॉफिट मार्जिन्स. So this is what is the restaurant feasibility pyramid. I am going to give this to you, don't worry. Cool? Now spending pattern of a person. Basically a person, now in every particular sector which you have, you can open an outlet. Now see, when a person, ये बच्चा रहेगा तब ये चॉकलेट खाते, तभी तो रेस्टोरेंट का कुछ सामान लिए. बॉय, छोटा बॉय गर्ल होने के बाद में लाइट स्नैक्स, डोसा खा लिया, पाव भाजी खा लिया, चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया. बैचलर होने के बाद में दारू वारू पिएगा, चकना वकना खाएगा, राइट? बर्थडे पार्टीज, बूस्ट पार्टीज, ट्रैवल गैदरिंग, एवरीथिंग, कंपनी आउटिंग्स. मैरिड होने के बाद में फैमिली विजिट्स, थोड़ा सा सोबर हो जाएगा, फैमिली विजिट्स, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शंस में वगैरह. सो ईच एंड एवरी कैटेगरी विच इज देयर, द रेस्टोरेंट्स कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस. मिडिल एज में उनका फूड का कंजम्पशन कम होता है बिकॉज देयर किड्स आर देयर, तो किड्स को खाना पीना ज्यादा हो जाता है. एंड ओल्ड एज में लो फूड स्पेंड एंड हाई ओल्ड एज में तो लिटरली फूड स्पेंड, खाना खत्म ही हो जाता है, कंजम्पशन खत्म हो जाता है, राइट? सो कस्टमर्स इधर वांट न्यू और दे वांट डिफरेंट और चीप. दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट. कंफ्यूज्ड कस्टमर्स विल ऑलवेज लुक एट प्राइस. विल गो थ्रू दिस फास्ट, इट इज जस्ट दिस थिंग. सो if you don't communicate value for your product, customers will look at price. Here are the traits of an unsuccessful restaurateur. Decor and experience is unrelated. वड़ा पाव बेच रहा है और उसने लाउंज का डेकोर करके रखा है. कस्टमर इज कंफ्यूज, तो क्या है
मतलब मेनू देख रहा है तो वड़ा पाव मिसल पाव मिल रहा है, लाउंज बनाया है, इज लाइक टोटली कंफ्यूज. फूड इज ओल्ड बोरिंग, प्राइसिंग इज टू हाई और टू लो. टू लो रहेगा तो कस्टमर बोलता है अरे इसमें तो कचरा डाला होगा. टू हाई रहेगा तो ही कैन नॉट अफोर्ड इट. अनसर्टन टेस्ट, too many items. One restaurant which I was consulting, they had got kind of like a Gita type of ग्रंथ इतना बड़ा. मैं बोला यार ये कौन पढ़ते बैठेगा, you know. So your menu has to be concise. Same food, same preparation, एक ही टाइप में पनीर टिक्का मसाला, वेज मसाला, वो सब एक ही इसमें डाल रहा है. And customers don't feel motivated to come again. Successful restaurateur, decor and experience is relatable, food is new and trendy. The owner is at least trying to create something new. ये नहीं वही का वही बर्गर चिपका दिया और ये चिपका दिया, कुछ तो नया बनाने का ट्राई कर रहा है. प्राइसिंग इज वैल्यू फॉर मनी, वेराइटी इन टेस्ट, वेराइटी इन ऑफरिंग, वेराइटी इन प्रेजेंटेशन, एंड कस्टमर फील्स लाइक शेयरिंग. नाउ व्हाई डू बिजनेसेस फेल? वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस. ओनर ऑपरेशंस में घुस जाएगा, ये कैश काउंटर पे बैठेगा रोज आके, ये कॉइन गिनने को चालू करेगा और फोकस करेगा ऑन ऑपरेशंस. ही डज नथिंग एल्स. And that is the biggest mistake which you can do. Now I am owning 3 restaurants and a resort. Are you seeing me in the restaurant? I'm here. My restaurants are working. But I am focusing on things which are getting me business. So daily operations पे big mistake. एक starting में 1-2 साल करना ठीक है, lifelong करना big mistake. Staff handling, हमेशा staff के पीछे लगा, ये काम कर, ये कर, वो कर, ये कर, torture करना. Overall supervision. And he hates and ignores sales. धंधा कैसे लाऊं? इस पे अपने होटल ओनर का काम होना चाहिए. यू आर अ किंग मेकर, यू आर नॉट द किंग. आपको मैनेजर को किंग बनाओ, आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, आपको किंग का, आपको ताज से क्या मतलब है? इन्वेस्ट इन मार्केटिंग. सी बिकॉज यू आर नॉट फ्री ना, हु इज गोइंग टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट आउटलेट? आपने ये आउटलेट खोला है, आपको महीने का 50,000 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है. एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं. 50,000 मतलब साल का 6 लाख रुपए होता है. साल का 6 लाख में लेट से आपने 5 साल में सब खर्चा वर्चा करके 10 लाख रुपए जमा किया, 10 या 20 लाख रुपए. आप 5 साल में दूसरा आउटलेट खोल सकते हो, लेकिन वो दूसरा आउटलेट आप तभी खोलोगे जब इसमें से आप निकलोगे, नहीं तो आप नहीं खोल सकते. अगर आप एवरीडे वही दूध आया क्या, दही आया क्या और ये आया क्या. मैं एक सिंपल रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ. रोटी आया क्या, मैनेजर किधर है, ये क्या है, वो सब सिर्फ से बाहर निकल जाने का. लेट देम डू इट. गलतियाँ होंगी, थोड़ा लॉस भी होगा, बट कंसिडर इट एज एन कॉस्ट ऑफ इनकन्वीनियंस. whatever money you will be losing for theft, for inaccuracies in the particular restaurant, think of it as a necessary expense for your next restaurant. Otherwise, you are not going to open a next restaurant. Why the circle of doom for a restaurant business? I know I'm giving you a lot of negative things as far as the restaurant is concerned. These are facts. मैं 20-25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, यही बता रहा हूँ. नॉट इनफ सेल्स. सेल कम होने के बाद में स्टाफ का कमाई कम हो जाता है या ग्रोथ कम हो जाता है, टिप नहीं मिलता है, स्टाफ लीव्स, नो रेस, नो ग्रोथ. एंड दैट गोज फॉर किचन एज वेल एज एफ&बी. मैनेजर किसी को, जिसको पैसा कम मिलेगा तो स्लोली फर्स्ट बोलते हैं ना, शिप में पहले रैट्स भागते हैं, वैसे पहले स्टाफ निकलता है. एक्सपीरियंस ड्रॉप्स. व्हेन द स्टाफ गोज, योर एक्सपीरियंस ड्रॉप्स. खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है. कैश हैंडलिंग इश्यूज, पैसा नहीं देने को, वेंडर को नहीं देने को, इसको उसको. डिलेज इन वेंडर्स एंड अदर लायबिलिटीज. ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स. वॉक-इन्स एंड ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ड्रॉप होता है. दिस इज द स्पाइरल ऑन विच द रेस्टोरेंट गोज डाउन. द सेम वे इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्स, दे सेम स्पाइरल आपका अच्छा चलने लगता है. रेस्टोरेंट ओनर्स डिलेमा, whether to sell high or sell low, to whom to sell, how to get more orders. Now, if I give you this watch, रास्ते पे अगर अपन चल रहे, मैं आपको बोलूँ ये वॉच है, रोलेक्स है, 2,000 रुपये में, आप लोगे? Why? If it is real, I might be selling it real, but you don't have that trust, right? Place might be wrong. One more thing, it could be a fancy shop, good shop. You might think of this. Someone on the street offers you 2,000. Write this down. This is very important. If you are cheap, nobody expects you to be the best. If you are best, nobody cares how costly you are. How many people have iPhone? 1, 2, 3, 4. A usual phone costs 1/3 or 1/4 of an iPhone, but people buy iPhone.
because they believe in quality. Now whether it is right or wrong, वो एंड्रॉइड और इसका वो झमेला तो चल ही रहा है, वो बात अलग है. But if you are cheap, nobody expects you to be the best. If you are the best, nobody. If it is a 1.5 lakh rupees, you're going to buy an iPhone because you know that it is a good quality. It is going to help me create a stature in the marketplace and blah blah blah. The problem with us restaurant owners is that we want to give people the best quality in the cheapest price. That's the most stupidest thing you can do. वड़ा पाव अगर अपन रास्ते में 15 रुपए में बेच रहे हैं एक वड़ा पाव, वो वड़ा पाव बनाने को अपने को 5 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, तो वो वड़ा पाव प्योर घी में तलने के बाद उसको 10 रुपए का कॉस्ट रहेगा, तो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो 15 रुपए ही देने वाले आपको. सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन इज पीपल वॉन्ट चीप, दे डोंट केयर. अच्छा ये तो हो गया. अच्छा टेल मी वन थिंग, विच इज मोर प्रॉफिटेबल, लो कॉस्ट और प्रीमियम प्राइसिंग? बोथ आर प्रॉफिटेबल बाय द वे. लो कॉस्ट में हाई वॉल्यूम होता है, प्रीमियम प्राइसिंग में लो वॉल्यूम होता है बट प्रॉफिट होता है. आई नो पर्सनली, आई नो अ वड़ा पाव वाला who has got 3 वड़ा पाव shops who is owning 2 flats in Bombay. 3 वड़ा पाव कॉर्नर से, 3 वड़ा पाव कॉर्नर. सो बोथ द थिंग्स आर वर्किंग. वड़ा पाव ठेला भी चलता है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट भी चलता है, राइट? Always think, now write this down, always think how to sell most food to maximum people at the highest price. Isn't that the smartest thing to do? ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा रेट में. Now I have a restaurant. Where do I make my money? In my resort I take, what do you call, these destination weddings. Each destination wedding is around 15 to 20 lakh rupees. I give food to them. ज़्यादा पैसा उधर है. मैं वड़ा पाव भी बेच रहा हूँ, बट मैं हाई रेट में बेच रहा हूँ. I do ODCs, I do caterings. So sell more food to maximum people at highest prices. That's the key to success in a restaurant business. How? Now this is my high level program ka this thing. Just I'll go through it fatafat. First is you have to work on your mindset. You have to believe that you are going to be successful in the food business. If you don't believe, मैं नहीं चला, 20 लाख रुपए मेरा गया तो मैं जॉब करूंगा, नहीं, उसने बोलना मैं 20 लाख रुपए नहीं, मैं इसको ही करूंगा जिंदगी भर. When you have that mindset, that is where you are going to succeed. Because it is going to happen now. How many people raise their hands who are going to open a restaurant? 4-5 लोग बोले ना. And the people who are going to work. After 5 years, 10 years, जब भी आपका get together होगा ना, तभी आपका comparison होगा. यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसने तो बहुत अच्छा कर लिया, इसने तो घर भी कर लिया यूके में, इसने एक कर. It happens with me also. So you have to be mentally prepared that this is a long term game. It is not a short term game. 20 साल के बाद में भी आपका जो बंदा है जो जॉब कर रहा है, लेट्स से ही इज डूइंग अ जॉब, ही इज गोइंग टू बी देयर, बट यू आर गोइंग टू गो लीव. वो कछुआ और इसका स्टोरी रहता है ना, हेयर का, वो सो जाता है, वो निकल जाता है, वैसे ही है. या सो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट, लोकेशन, देन नेम, लोगो एंड ऑल दैट्स फाइन. परफेक्ट आपका जो फूड परफेक्ट है, क्यूजीन, टारगेट क्लाइंटेल, आउटलेट प्रॉपर्टी. आई गिव यू कपल ऑफ नगेट्स ऑन चूजिंग अ प्रॉपर्टी. प्लानिंग, उसके बाद सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी. आई एम गोइंग टू गिव दिस टू यू बाय द वे. इंटीरियर्स, किचन सेटअप, लाइसेंसिंग, रिक्रूटिंग स्टाफ, बाइंग, अरे मैं उंगली क्यों दिखा रहा हूँ, हाँ, बाइंग किचन इक्विपमेंट, आउटलेट फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी, सेटिंग मेन्यू, फूड ट्रायल्स, डिजाइनिंग, मेन्यू, टेबल डिस्प्ले, साइनेज, इंटीरियर वगैरह वगैरह. ओपनिंग करना है, प्रमोशन कंटिन्यू रखना है. उसके बाद आपका स्केल करना है. दिस इज वंस यू सक्सीड इन वन आउटलेट, ट्रेडमार्क, एसओपीज क्रिएट करो, कोर टीम बनाओ, फाइनलाइज योर स्केलेबल आउटलेट, प्रमोट योर ब्रांड, चूज मॉडल, स्टार्ट स्केलिंग, अग्रीमेंट. दिस इज वेरी मेक अ लॉट ऑफ मनी. I know I am working with 4 chain of restaurant owners who are on the verge of earning at least 7 to 8 crore rupees in a year. This is magic. This will happen after 10 to 15 years if you allow it to happen. But you can make a lot of money here also. 1 or 2 outlets, 3 outlets also, you can easily make 7-8 lakh रुपया महीने का आराम से. And that is actually enough for one particular family. But then अगर आपका ambition बड़ा है and if you want to take the pain, you can then go for the scaling model. Yeah? Cool? Yes. Now, this is the last thing.
Now since I work with so many restaurant owners, this is what happens when you start. First, you start with around a small outlet or a home kitchen. That's why I said कि 20 लाख रुपए में अब आप आउटलेट कर रहे हो तो कभी कभी कंपेयर करते हो बड़े रेस्टोरेंट से और अपन थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, यार मेरा तो छोटा आउटलेट है, ये लोग का कितना बड़ा है. बट दिस इज योर फर्स्ट आउटलेट. अपन गाड़ी कैसे लेते हैं, पहले छोटा गाड़ी लेते हैं, बाद में फिर अर्टिगा लेते हैं, फिर एसयूवी लेते हैं. द सेम वे आपका पहला छोटा, इसमें यू आर फाइन ट्यूनिंग योर थिंग. ऑल द रेस्टोरेंट पीपल आर ओपन, यू आर फाइन ट्यूनिंग योर एक्सपीरियंस. आपको खुद को पता चल रहा है कि विच थिंग यू आर गुड इन, वेदर यू आर गुड इन मैनेजमेंट, वेदर यू आर गुड इन कनेक्टिंग विद रेस्टोरेंट ओनर्स, आप टीम हैंडल कर रहे हो. वो छोटा आपका एक बार सेट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बड़ा बड़ा आउटलेट खोल सकते हो, वो ब्रांड का या दूसरे ब्रांड का. सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू गाइस इफ यू आर स्टार्टिंग स्मॉल, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स व्हेन इट इज स्मॉल. इमेजिन आप अगर 4 करोड़ का रेस्टोरेंट में बड़ा मिस्टेक करो, आपका 4 करोड़ घुस जाएगा. अगर आपने 5-10 लाख में मिस्टेक किया तो ज्यादा आपका तकलीफ नहीं होने वाला. यू कैन एनीवे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. Oops. So, home kitchen, small outlets, what they usually start from home or gets a food business, finds out whether the business is for them or no. This is very important. Lot of times people think that I will be a restaurant owner, but उनका जो personality होता है उसको सूट नहीं होता है. ये क्या यार, मेरे को तो वीकेंड में जाने का था, चिल करने का था, बियर मारिए का, रोज रोज कौन आएगा रेस्टोरेंट में, ये मेरा काम नहीं है. So you have to find that out, and that is very very important. Starting में ये छोटे आउटलेट में आपको मालूम पड़ता है whether this business is for you or no. Some people might feel कि ये after doing this business and shutting down that this is not for me. I'm going to go and do a job. 8 घंटे का जॉब करूंगा बस, मेरे को ये सब मगजमारी नहीं करने का. It can happen. Second, then this happens usually during 1 or 2 years. After 1 or 2 years, you build a business. You start gaining confidence, understanding management, and build a small team. You start establishing loyal customer base. 2-3 साल में आपका कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है, बार बार आते हैं लोग स्टार्टिंग में. They might like your food, they might like the owner, they might like the staff, they might like the ambience, whatever. And preferred unique, then you start creating a preferred unique using experience. Then around 4 to 6 years में you 2-3-4 साल में ये सक्सेसफुल होने के बाद में you open a restaurant, थोड़ा सा बड़ा रेस्टोरेंट. You create processes. आपका परचेस का एक प्रोसेस बन जाता है, मार्केटिंग का प्रोसेस बन जाता है, यू कैश हैंडलिंग आपका एक बन जाता है. यू क्रिएट अ टीम ओवर हियर. यू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन 4 to 6 years. यू स्टार्ट मैनेजिंग इट, योर मैनेजमेंट स्किल्स, आपका टीम बन जाता है, एंड यू बिल्ड अ बेटर टीम. योर फोकस देन शिफ्ट फ्रॉम ये लॉयल कस्टमर बेस से आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है 4-5 साल में. यू फॉलोइंग दिस? 4-5 साल में आप यू आर फोकसिंग ऑन द नंबर्स. कितना सेल हुआ, महीने का कितना बच रहा है, किसका पैसा देने का बाकी है, किसका वेंडर का बाकी है, एंड देन यू फोकस ऑन इकोनॉमी. सस्ता किधर से माल उठाऊं, कैसे ये करूं, प्रमोशंस, क्रिएटिंग लॉयल स्टाफ. नाउ आफ्टर 4 to 6 years, उसके आगे का जो 6 से 8 साल है, उसमें यू गो एंड यू स्टार्ट ओपनिंग अनदर आउटलेट, बिकॉज यू आर मेकिंग मनी हियर. 4 से 6 साल में आप अगर पैसा नहीं बना रहे हो तो मतलब ही नहीं है, और उधर तक आप अगर पैसा नहीं बना रहे हो तो आप टिक भी नहीं पाओगे. 2-3 साल में आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा. बट आपने अगर 4-5 साल में रेस्टोरेंट ये कर दिया तो 6 से 8 साल में ना यू स्टार्ट ओपनिंग अनदर आउटलेट. यू विल रेप्लिकेट द सेम थिंग और यू विल डू समथिंग एल्स विच यू हैव लर्नड ओवर हियर. यार ये पाव भाजी यहाँ पे नहीं चल रही है, वहां पे चलेगी, वहां पे डाल देता हूँ. एंड यू ओपन अ रेस्टोरेंट, रेप्लिकेट द सेम कंसेप्ट एंड analyze whether it is going to work for you or no. Then you start focusing on creating new unique identity products. पनीर बुर्जी पाव भाजी बनाओ या कुछ whatever. You start creating your own product, you start creating your own systems, and you start making a team. This after 6 to 8 years is what creates a formula for you. Repeated systems become processes. System regular वही रूटीन कर रहे हो. अभी आप यहाँ पे 3 साल से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो आप एक ही बस पकड़ के, एक ही ट्रेन पकड़ के आ रहे हो ना 3 साल से. वो तो अभी आपके लिए वो टाइम वाइम सब एकदम कॉमन हो गया. रिपीटेड प्रोसेसेस बिकम सिस्टम्स. दैट इज योर ट्रैवल सिस्टम्स. लॉयल टीम लीड्स टू लीडर्स. आपके टीम के अंदर से अच्छे अच्छे लीडर्स निकलना चालू होते हैं, विच यू कैन पिक अप एंड पुश टू द नेक्स्ट आउटलेट. एक्सपांड योर थिंकिंग एंड मैनेजमेंट इन एक्सपांशन. After 8 to 10 years, you will stop focusing about one outlet.
you will start focusing about multiple outlets. You will change, you will mature. Your bank account will also mature and you will also mature. Hi, sir. And you get ready for expansion. You will secure trademarks, you will build systems and processes, you will build team for expansion, and you will plan finances. Your focus will be on creating expansion systems and other outlets, and then you can decide whether you want to franchise, whether you want to self-fund, or whether you want to do this. And eighth, finally, scaling. Focus shift from multiple outlets to multiple markets. बॉम्बे में 4 आउटलेट है, आप सैचुरेट हो चुके हो, सब लोग आपका रेस्टोरेंट का, अरे बैंगलोर कैसा रहेगा, अरे लुधियाना कैसा रहेगा, अरे दिल्ली कैसा रहेगा, लेट्स ट्राई वन आउटलेट देयर, यू नो. सो फोकस. हाँ, एंड दैट टाइम यू विल गेट इन्वेस्टर्स, वीसी फंड आएंगे, ये आएंगे, पैसा डालेंगे आप में, 40 करोड़ डालता हूँ, 50 करोड़ डालता हूँ, चलो 10 आउटलेट खोल दो, वैसा होगा. आई नो इट साउंड्स लिटिल ग्लूमी नाउ, बट इट हैपेंस व्हेन यू आर एट दिस स्टेज. Customer satisfaction and your turnover matters. Mass cost reduction. You start working on one concept, one idea which can reduce the cost down. एक जगह से सप्लाई ले लिया, सब पूरा का पूरा कॉस्ट कम हो गया. So you start focusing on that. So this is actually the whole foodpreneur's journey which you are going to go through. And this is exciting, guys. I can see when I'm working with a lot of restaurant owners, this really changes lives. Okay, so this is it. Now we'll take some questions if we have. I hope this was helpful for you guys. Do we have any questions? कि थोड़ा ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं हो गया? कोई सवाल है क्या? ओ, यहाँ पे कुर्सी है. कुछ है? नहीं? फिनिश करें? What if you do a job and your hotel fires you? You will not survive after 3 years, 4 years. Within 1 year, 1 or 2 years, either it is yes or no. And if it is no, you will get to know why it is not working. Most of the issues are done by the owner only. See, once you start a restaurant, they are not infusing the required working capital. लोगों को क्या लगा? And then when making the restaurant, they blow up their money while making the restaurant. वो रेस्टोरेंट को है ना अपना पर्सनल प्रोजेक्ट समझ लेते हैं. मैं हिताची का एसी लगाऊंगा, मैं एकदम 5 स्टार का सिल्वरवेयर रखूंगा, ये रखूंगा, वो रखूंगा. The best thing which you can do is to make the restaurant in as less money as possible. Capex should be as less as possible, and you should create at least 6 months का फिक्स्ड कॉस्ट का वर्किंग कैपिटल. उतना रखना आपको बहुत ज़रूरी है. 6 महीने का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सैलरी, वो 6 महीने का आपको तैयारी रखना बहुत ज़रूरी है. लोगों के पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहता है. लेट्स से 20 लाख है, आपने रेस्टोरेंट चालू किया, तो आपका 10 लाख में एक्चुअली आउटलेट खुलना चाहिए, 20 लाख में नहीं. 10 लाख आपको रखना चाहिए. रेंटल होगा 30-35,000 ना छोटा आउटलेट के लिए. तो आपका 6 महीने का ये क्या बोलता हूँ उसको, रेंटल और सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास सर्वाइव होना चाहिए. क्योंकि उतना टाइम लोगों को लगता है मालूम पड़ने को कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है. तगू करना उतना टाइम लगता है लोगों को सपना नहीं आने वाला आपने रेस्टोरेंट खोला है. आपका प्रमोशंस, आपका ये, तो 6 महीना तो लगेगा. सो 6 months to 8 months ideally it should take you to pick up. Not to get your project cost back, that will take you 2 years. And it would, if it, yeah, बोलिए ना भाई. Very important. Location plays an important role if you are actually dependent more on walk-ins. अदरवाइज ऑनलाइन से अगर आप ऑनलाइन और आपका खाना यूनिक करके बेचोगे तो आजकल ऑनलाइन में जोमेटो स्विगी पे ऑर्डर आ जाता है. बट अगर आपको हैवी फुटफॉल पे आपको डिपेंड हो, लेट से आपने वड़ा पाव, मिसल पाव टाइप रेस्टोरेंट खोला जो एकदम सिंपल है, तो आपने गली के अंदर खोल के कोई मतलब नहीं है, तो फुटफॉल के ऊपर डिपेंड है. हाँ
हाँ उसमें उनका खाना सर इतना कुछ खास नहीं था, एकदम ठीक ठाक था। एंड सर जो मेरे घर के थोड़ा बाजू में था रेस्टोरेंट, उसका खाना बहुत अच्छा था और उधर कस्टमर भी थे। हाईवे वाला क्यों चल रहा था? दैट्स द लोकेशन. इट इज कॉमन सेंसिकल, बट बहुत बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं. वो लोग क्या सोचते हैं, ये सस्ता है, आई कम बैक टू यू, ये यहाँ पे भाड़ा कम है तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ. एंड इट्स अ नेचुरल थिंग, इसमें किसी का गलती नहीं है. बट अगेन दिट इज अ लर्निंग. आई टेल यू, इफ यू सीरियसली वॉन्ट टू ओपन अ रेस्टोरेंट एंड यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एट दिस, एक आध दो रेस्टोरेंट बंद करेंगे ये मन में सोच के चलना. एंड बंद करेंगे का मतलब ये नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल हो. बंद करेंगे मतलब उसमें आपको सीखने को मिलता है. दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस. बंद नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, वो सवाल नहीं है, बट बंद होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इट हैपेंस. मैंने भी एक दो रेस्टोरेंट बंद किए मेरे, अभी सक्सेसफुल होने के लिए. स्टार्टिंग में 2-3 साल में एक हाथ बहुत एक बार लैंडलॉर्ड के साथ टस, वो जो रेंट का बात बोल रहा था मैं, अच्छा चलने लगा. 2 साल में लैंडलॉर्ड ने पकड़ लिया. वो टाइम पे रेंट था, बोला मेरे को डबल रेंट देने, तो निकल. क्या करूँ, निकाल दिया, बंद हो गया. बट अगली बार मैंने कान को खड़ा लगाया, मराठी में कान को खड़ा लगाना बोलते, कि 10 साल के नीचे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करने का. 10 साल करो और नो एग्रीमेंट डालो कि भैया अगर मेरे को निकाला तो मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा. एंड पीपल डू दैट. यू हैव टू फाइंड दोज काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स. हाँ, आपका क्या सवाल था सर? सर मेरे उधर एक ब्रांड इन्वेस्टर है, आपको शॉर्ट मोमोज वगैरह बेचते हैं, तो वही सेम मतलब आउटलेट वो मतलब फ्यू डिस्टेंस में वापस से और एक खोल दिए, तो उसमें का प्रॉफिट मतलब सेफ है. वो एक्चुअली उसका खुद का ही कैनिबलाइज किया ना. दैट्स अ मिस्टेक एक्चुअली. आजू बाजू में खोल के कोई मतलब नहीं है. मतलब 4 to 5 किलोमीटर की डिस्टेंस. हाँ, अगर मार्केट अलग है तो बात अलग है. 4 to 5 किलोमीटर तो अलग मार्केट हो गया, वो उसको मैनेज करने को ईजी गिरता होगा. तो इट्स गुड, इट्स अ गुड आइडिया. या 4 to 5 किलोमीटर्स में जो वॉक इन आते होंगे वो भी अलग होंगे ना यहां से, तो इट्स अ डिफरेंट मार्केट. सर एक अच्छा सा कैफे खोलने कैपिटल. डिपेंड्स आपका लोकेशन कौन सा है. आप अभी एक कोई लोकेशन है दिमाग में आपका, उधर लोकेशन का आपको रेंट देखना पड़ेगा, फिर आप उसका डेकोर देखना पड़ेगा, कितना डेकोर डालोगे आप. हमारे यहाँ लाइक रेंट चल रहा है अभी 20,000-30,000. एरिया कितना है आपका? नहीं मतलब 300 स्क्वायर फीट, 300-400 स्क्वायर फीट. आइडियली 3,000 to 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट डेकोर का खर्चा आता है. 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट. मतलब देख लो ना, जोड़ लो आप कितना हो जाएगा. 4, सॉरी, खुद के तो और प्लस में हो जाओगे आप. आपका भाड़ा बचेगा, भाड़ा बचेगा आपका. हाईवे पे ही है, बट वहाँ पे क्या स्टार्ट कर सकते हैं, व्हिच काइंड ऑफ आजू बाजू में कौन सा सिटी है, मतलब कितना लंबा है? हाँ हाँ, बताओ ना आपके कुठली साइड है, काय आहे आजूबाजूला, काय आहे? हाईवे पे है तो हाईवे टाइप ऑफ रेस्टोरेंट वर्क्स वेरी वेल, वेर यू कैन गिव देम ब्रेकफास्ट, यू कैन गिव देम लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर. कोंकण में तो आप मेरे रेस्टोरेंट में भी आए होंगे ना, कामत गोविंदा में, नागोटने में. आप बाय रोड जा गए कि गाँव कभी? कामत गोविंदा वो मेरा ही है. तो हाईवे पे जो लोग जाते आते हैं ना, उनको क्या लगता है, ब्रेकफास्ट लगता है उनको, चाय कॉफ़ी लगता है, लंच लगता है. हाँ, हाईवे पे आप लाउंज बार खोल के मतलब नहीं, जस्ट टेलिंग यू. हाईवे पे यू हैव टू ऑलवेज गिव व्हाट द कस्टमर वांट्स, नॉट व्हाट यू वुड लाइक टू गिव. आपको पेस्टो सैंडविच अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले को वेज सैंडविच खाना है ना, और वो पैसा देने वाला है. तो जो पैसा देने वाला है उसका सुनने का, तो अपने को पैसा मिलेगा ऐसा. सो वैसे टाइप का रेस्टोरेंट खोलिए, मल्टी क्यूजीन, इंडियन, चाइनीज, तंदूर और ब्रेकफास्ट. सकाळी नाश्ता द्या, कांदा पोहे, उपमा, शिरा. आई नो इट साउंड्स व्हेरी बेसिक बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. कांदा पोहे, शिरा, उपमा, मिसळ, वडापाव एंड डोसा एंड व्हाटएवर. आफ्टरनून में थाली दे दो, सेट है. 30 लाख रुपये आपका सेल महीने का किधर भी नहीं गया. 30 लाख रुपये में 20% प्रॉफिट है, 6 लाख रुपये प्रॉफिट. डिपेंड्स इफ यू हैव अ बिग रेस्टोरेंट. इसको ये सेल तक पहुंचने को आपको 6 महीने जाएगा, ऐसा नहीं पहले दिन से, बिकॉज पीपल विल स्लोली नो दैट दिस इज अ प्लेस वेयर देयर इज गुड फूड.
then slowly the customer loyalty will happen. क्योंकि वो जमीन भी ऐसी है जहाँ पे आजू बाजू कोई रेस्टोरेंट है नहीं दूर दूर, हाँ, तो मुझे वही सोच बेस्ट है. नहीं, गुड. इट्स अ गुड प्लेस ऑन हाईवे. एंड हाईवे का सबसे बड़ा ये है, आपको टॉयलेट्स क्लीन रखने. यू हैव टू कीप क्लीन टॉयलेट्स बिकॉज फैमिलीज कम एंड फैमिलीज वांट क्लीन टॉयलेट्स, क्योंकि नहीं तो औरतें जाएंगी नहीं, उनका साड़ी वाड़ी चेंज करने का वो सब रहता है. सो कीप क्लीन टॉयलेट्स, इनफैक्ट एडवर्टाइज क्लीन टॉयलेट्स एंड कीप गुड फूड. यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड यू हैव योर ओन लैंड, तो फिर टेंशन ही नहीं है आपको. कोलेटरल फ्री लोन ले लेने का, मुद्रा स्कीम का 1 करोड़ रुपए, CGT SME स्कीम, राइट इट डाउन. CGT SME स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. यू गेट अ कोलेटरल फ्री लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीज. आपको 1 रुपया कोलेटरल देने का जरूरत नहीं. CGT SME 1 करोड़ रुपए ले, मस्त धंधा करो, टेंशन नहीं. सर जैसे इनका खुद का लैंड है, ये नॉमिनल प्राइसेस भी रख सकते हैं ना टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. That doesn't work. Nominal prices actually attracts cheap customers. You have to have, आपका जितना फूड कॉस्ट है ना, उसका एटलीस्ट 3 to 4 टाइप्स का वेरिएंट रखना चाहिए. लेट से आपका चाय बनाने को आपको 7 रुपया खर्चा आता है, तो आपका चाय 25-30 रुपए के रेंज में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हाईवे पे ना, इट इज साइक्लिकल बिजनेस. मतलब जैन फेब मार्च अच्छा चलेगा, मार्च में एग्जाम का टाइम आता है तो ड्रॉप होगा, फिर अप्रैल में छुट्टियां गिरती है, बढ़ जाएगा, ट्रैफिक बढ़ता है ना. अप्रैल में जून दबा के चलेगा, जून में बारिश आता है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ड्रॉप होगा. थोड़ा बीच में गणपति में बढ़ेगा, कोकण में गणपति इज अ बिग क्रेज. फिर नवंबर दिवाली में बढ़ जाएगा, दिवाली के पहले वो पितृ पंद्रवड़ा आता है ना, तभी ड्रॉप होएगा. तो वो ऐसा ऊपर नीचे आता है. सेकेंड इज फूड कॉस्ट इज लिटिल हायर ऑन द हाईवे बिकॉज यू हैव टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम द सिटी. सिटी का बात अलग है, सिटी में रेस्टोरेंट में वेंडर आपको आके देंगे जो भी चाहिए, दूध, ये यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट बढ़ता है. तो आपने जो बोला है ना, सस्ते में दूंगा तो ज़्यादा वॉल्यूम होएगा, ये मिथ है, ऐसा होता नहीं. क्योंकि ऐसा अगर रहता था ना, तो वड़ा पाव वाले ही सब करोड़पति बन जाते थे. सबसे सस्ता तो वही दे रहे हैं ना. सी पीपल, एवरेज पर्सन है ना, सस्ता कौन ढूंढता है. लेट्स से आई एम नॉट मैरिड एंड मैं किधर तो जा रहा हूँ, मेरे को भूख लगा, मैंने एक वड़ा पाव खा लिया, तो मैं कॉस्ट देख के वड़ा पाव खाऊंगा. मैं मेरा फैमिली को लेके जाऊंगा तो मैं रास्ते पे खड़ा रह के वड़ा पाव खाऊंगा. आई विल टेक देम टू अ गुड रेस्टोरेंट एंड दैट इज वेयर आई नो आई हैव टू स्पेंड 3-4,000 bucks. आई नो, बट दैट्स अ डिफरेंट. इसके लिए मैंने आपको ह्यूमन साइकिल दिखाया ना. जब भी आप शादी करते हो तो आपका स्पेंडिंग बढ़ता है. आप बैचलर रहते हो तो यू डोंट केयर, आप बाहर खड़े खड़े एक फ्रूट सैलेड खा लिया, एक जूस मार लिया, खेल खलास. सो वेयर यू हैव टू गो टू टारगेट ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. But anywhere you open, profit should be your number one priority. I'll tell you. Oh, don't try to. I'll change the rule. मैं सस्ता दूंगा तो मेरे पास बहुत लोग आएंगे. ऐसा नहीं होता. It's a myth. वो चक्कर में ना लॉस हो जाता है और अपना ही नुकसान हो जाता है. वो जो मैंने आपको 2 का डिस्टिंक्शन बताया था ना, चीप पीपल, मतलब चीप इन द सेंस नॉट पीपल हु वांट चीप प्राइजेस, दे डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी. अगर आपको सस्ता बेचना है ना, बेचो, लेकिन उसका जो तेल वेल है ना, वो भी सस्ता करो. आप ग्राउंडनट ऑयल जो है 3,000 रुपये डब्बा, वो उसका वड़ा पाव दोगे और आप सामने वाले को बोलो मैं 15 में बेचूंगा और मैं करोड़ों कमा लूंगा, वो नहीं होने वाला. आप उसको पाम तेल में ही बेचना या सादा तेल में ही बनाना, राइट. दैट इज दैट. सर एक और क्वेश्चन था मेरा. बोलिए ना. तो सर मैं डायरेक्ट एक रेस्टोरेंट डालूं कि फूड कार्ट से चालू? वेरी गुड क्वेश्चन. आपका खुद का जगह है, बाहर है, तो एक्सपीरियंस के लिए आप छोटा सा चालू करो. पहले आप 15-20 लाख रुपए डालो, आप खुद पहले ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ले लो. वो आउटलेट बाद में भी आपको चालू रखना है, लेकिन जब भी आप रिस्क ले रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में 1 करोड़ का रिस्क लेना, 20 लाख का रिस्क ले लेना. गाड़ी चलाना सीखोगे, अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे, गाड़ी चला रहे हो, तो डायरेक्ट मर्सिडीज थोड़ी खरीदोगे. आप कोई दूसरे के गाड़ी पे पहले उस पर दूसरे के गाड़ी पे सीखोगे ना. आई वुड एक्चुअली, अगर आपके पास टाइम है, सिंस यू हैव टाइम, यू आर नाउ 20 to 23 years of age, 1 or 2 years, whatever the restaurant I want to open, I will work in that restaurant.
एंड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. दिस गोज फॉर यू ऑल्सो. अगर आपको मान लीजिए एक रेस्टोरेंट खोलना है कोई, तो उसका आजू बाजू में जो फेमस रेस्टोरेंट है ना, उधर जॉब करो 6 महीना, 6 महीना 1 साल खोलने के पहले. 1 साल में आपको पैसा भी मिलेगा और यू विल नो कि कैसा करना है, क्या करना है. आपका टीम भी बन जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी. आइडिया भी आता बिकॉज यू हैव टाइम, यू हैव टाइम. पार्टनरशिप में ओपन करना. डोंट गो फॉर पार्टनरशिप. Alone. Never with families. No, partnerships seldomly work. Give me one partnership firm in a company which is successful. There is no partnership firm. पापा और आपका तो बात अलग है, आप उनकी बेटी हो ना, तो पार्टनरशिप का क्या मतलब है? नहीं, ये पापा किसी और. सी पार्टनरशिप में क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स. इफ इट गोज वेल इट इज ओके, बट अगर बराबर नहीं चला ना तो फिर वो दरार आ जाती है. पार्टनरशिप नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, उनका दोस्त होगा या अच्छा रिलेशन होगा, बट मेजोरिटी देखिए एक आध दो सक्सेसफुल है, लेकिन मेजोरिटी में बैंड बज जाती है पार्टनरशिप. और व्हेन थिंग्स आर नॉट डूइंग वेल ना, फिर झगड़े चालू हो जाते हैं. अरे मैं कितना पैसा डालूं, तू भी नहीं डाल रहा है, तूने पिछली बार भी नहीं डाला, ये नहीं डाला. फिर दूसरा आदमी बोलता है अरे ये ऐसा कर रहा है तो मैं अभी और नहीं डालूंगा. सो इफ गिवन अ चांस गो अलोन. हाँ बोलिए ना. अगर पार्टनरशिप में कर भी दिया, आगे जाके कुछ हो गया, मतलब नहीं जानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्रैक कर सकते हैं. हाँ हो जाता है वो क्रैक, आपको करने की जरूरत नहीं है. झगड़ा होगा तो एज इट इज क्रैक हो जाएगा, और नहीं होगा झगड़ा तो भी आप एग्जिट क्लॉज डालोगे ना उसमें कि भैया अगर हमारा नहीं चला तो ये. बट उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ही होगा, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट पीपल और हर एक का नेचर अलग है. ओके हाँ मिलेगा ना, मिलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट देना पड़ेगा. वो लोन लेके ऑस्ट्रेलिया जाए मजा करने को वो नहीं चलने वाला है. यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. आप कोई नेशनलाइज बैंक में जाओगे ना, वो CGT SME स्कीम में दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ थिंग्स, क्या क्या है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो सब आपको क्रिएट कर, चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्रिएट करने का प्रोजेक्शंस है ना, यू विल गेट द लोन. बट स्टार्ट स्मॉल. आई वुड स्टिल से 1 करोड़ मिल रहा है बोल के 1 करोड़ जम मत मारो. स्टार्ट स्मॉल. ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, जो कोई भी बिजनेस में हाथ डालो और आप मेहनत से करो उसमें पैसा मिलेगा. ऐसा कुछ ट्रेंडिंग नहीं. और जो ट्रेंड होता है ना वो जल्दी ट्रेंड डाउन भी होता है. या प्लीज डोंट हैव टू आस्क यार, गो. सर और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया विल AI will help in the industry, so what you are looking. AI will help in software and all, but बाकी तो खाना खाने के लिए यार कैसे. See these three industries are not going to go out of date anywhere. Food, clothing and shelter. शेल्टर तो अपन कर नहीं सकते, बिल्डिंग बहुत पैसा लगता है. क्लोथिंग इज सेग्रीगेटेड, क्लोथिंग में भी आपको फैक्ट्री डालना पड़ेगा. फूड इज द बेस्ट एंड रिसेशन प्रूफ, AI प्रूफ, टेक्नोलॉजी प्रूफ, सबसे बेस्ट. खुद का करो, भूख तो लगता है ना, और खाना तो खाएगा, वो चेंज नहीं होगा. दैट इज द बेसिक थिंग विच यू कैन डू. बट मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, वो जो 30 ईयर्स का मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है, आज घर में जाओ या जब भी आपका खत्म होने के बाद में 1-2 दिन अकेले में you write it down how you want your 30 years life to be, and in that 30 years के life में if restaurant is not coming in that imagination, don't open a restaurant. I'll still tell you, because it's going to be a waste of your life. Lot of people are not made for restaurant business. Now मैं बचपन से मेरा फैमिली में देखते आ रहा हूँ, मैं खुद खोल रहा हूँ, because it has become natural for me. आपका शायद वो अलग रहेगा. So because I have seen कि रेस्टोरेंट में सक्सेस के लिए ना, familiarity with the restaurant is the food business is very important. You have to breathe in, breathe out restaurant. Just like how from my talks you must be seeing, it's like I'm literally talking about it day in day out because it's in my blood. So आपका जो ideal life है वो अगर अलग है, मेरे को majority social life चाहिए, enjoy करना है, chill करना है, then this might not be the business for you. I'm actually saving you 30 years by saying this. And then again, there is nothing wrong. ये नहीं खोला तो कोई life unsuccessful है, ऐसा नहीं है. Everybody is successful in their own way. People are going to do a job. People are going to work on shape. People are going to open a restaurant. Because success doesn't have a single definition. ये होएगा तो ही successful है. It is just happiness in your mind. But whatever I have told you up till now, keep these points in your mind when you are opening a restaurant, now or afterwards.
Okay? Huh? I hope that was helpful, guys and girls. All the best and take care. Yeah, please.